Good morning, Bridges Bhai. Good morning. Welcome to Career Box programs. This is an initiative of LJ University and the media partners is Radio LJ. And just we are guiding the students for career. Bridges Bhai, first of all, my question to you: what is your journey as a CWM professionals and the mentor? Okay. So, first of all, thank you for inviting me, Sandeep Bhai, and LJ University. And my best compliments to this new initiative, which will help the students, aspirants, to decide about the right career opportunity for themselves. If I talk about myself, तो मेरा थोड़ा सा पर्सनल फाइनेंस में इंटरेस्ट पहले से था. सो एट दैट पॉइंट इन टाइम प्रोफेशनल इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने उस टाइम पे IIBF का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एडवाइजिंग का मटेरियल स्टडी करके आई वाज प्रैक्टिसिंग पर्सनल फाइनेंस इनटू माय लाइफ. बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज दैट लोग अच्छी कमाई कर लेते हैं, बट वो पैसे को मैनेज करने में दिक्कत होती है, और उसकी वजह से दे आर फेसिंग लॉट ऑफ फाइनेंशियल चैलेंजेस. तो ये जो रियलाइजेशन हुआ, देन आई टूक एन इनिशिएटिव, और मैंने वेल्थ प्रैक्टिस शुरू करने के लिए आई स्टार्टेड लुकिंग फॉरवर्ड कि कौन से क्रेडेंशियल्स सूटेबल रहेंगे मेरे लिए. एंड देन आई एंड अप सिलेक्टिंग चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर, एंड मैंने 2018 में चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर पास किया है फ्रॉम अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एंड I got my SEBI registered investment advisor license, which is mandatory. अगर आपको fee based advisory अगर इंडिया में आपको करनी है तो RI लाइसेंस लेना जरूरी होता है. तो वो मैंने 2016 में लिया था, जब मैंने NISM के 2 एग्जाम्स रिक्वायर्ड थे वो पास किए थे. So that is how I entered into the chartered wealth management profession, wealth management profession, and got the credential of chartered wealth management. Basically, you start your journey in the education era. Yes. And then after shifted to the wealth management. So this is something unique case what I seen in my lifespan also. So how you are shifting from education to this wealth management era? So that's a great question, Sandeep. I had 2 decades of illustrative career into private education. I was offering. I started a career as IT trainer, IT training institute, then moved to distance learning, then again chartered accountancy and company secretary coaching, and so on and so forth. But over a period of time, I realized there is a requirement in the our country wherein product sellers are available, but pure advisors are not available. एंड आई माई सेल्फ वॉज हैविंग जो रिक्वायर्ड नॉलेज और स्किल्स थी वो मेरे पास थी. तो मैंने सोचा लेट्स स्टार्ट एंड क्रिएट एन इम्पैक्ट इनटू द फाइनेंशियल सेगमेंट ऑफ एटलीस्ट माय सिटी और माय स्टेट, इफ नॉट द इंडिया. So that is how I moved from an education to financial planning and wealth management thing. ब्रिजेश भाई, CWM जो सर्टिफिकेशन है कि क्वालिफिकेशन है उसका अवेयरनेस बहुत कम है. मतलब ऐसे इंडिया में देखे कि गुजरात में देखे तो इसका अवेयरनेस बहुत कम है. क्या है अपॉर्चुनिटी इंडिया में और अब्रॉड में ये पर्टिकुलर? सो अगर हम अवेयरनेस के बारे में बात करें तो इंडिया में फाइनेंशियल एडवाइजरी पर से एज एन एडवाइजर अवेयरनेस ही बहुत ही कम है. अगर हम RI के बारे में बात करें तो हार्डली लेस देन 1000 RIs आर देयर हु आर प्रैक्टिसिंग एडवाइजरी. So that is the issue related to India, not specific to CWM. If we talk about the CWM, so CWM is basically a program which gives knowledge, skills and credential जो आपको इंडियन क्लाइंट को तो कैटर करने में हेल्प करेगा, बट साथ में सिंस इट्स अ ग्लोबल क्रेडेंशियल, वहाँ पे इट्स नॉट दैट रिक्वायरमेंट कि अगर आपने इंडिया से CWM किया है, इफ यू हैव अ क्लाइंट और इफ यू गो आउट एंड प्रैक्टिस एल्सवेयर, so this same credential would be useful into other countries as well because it's a global credential. So ये global credential की वजह से मैंने जो options रहते हैं, पर आप if you want to work in the wealth management area तो options थे, तो ये global credential होने की वजह से मैंने CWM choose किया. दूसरा अभी आपने बताया कि रजिस्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आउटकम है, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जनरली हम देखते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो कमीशन कमाते हैं म्यूचुअल फंड से. हम बात करने जा रहे हैं कि हम फीस कलेक्ट करेंगे एडवाइजरी की इन्वेस्टर्स से, और वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग टू द म्यूचुअल फंड. तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है उसको जरा आप इलोबरेट करें, क्योंकि ऑडियंस को ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेजोरिटी केस में हम यही चीज देखते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड से कमीशन मिलेगा व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट्स. तो हाउ इट इज? Okay.
So basically, there is a word in the advisory, fiduciary advisory. Fiduciary means in the simplest form, कि when there is a conflict of interest between an advisor and a client, then the advisor would prioritize client's interest over and above his or her own interest. Correct. So that fiduciary practice अगर आपको करनी है तो वहाँ पे कमीशन आपको वो fiduciary practice करने से प्रोहिबिट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे कमीशन और कमीशन मैक्सिमाइजेशन प्लेज ए रोल, और वो fiduciary होना डिफिकल्ट है. So that is where the fee only advisory comes into the picture. अगर आपको fees only advisory करनी है तो आपको RIA license इंडिया में लेना होगा, because regulations requires that. So fiduciary practice is where the RIA comes into play. So that is how the RIA profession is evolving. ओके, मतलब आप जो बात कर रहे हो वहाँ पे क्लाइंट के इंडिविजुअल गोल के साथ हमारा जो कमीशन अर्निंग का गोल है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जी, उसके ऊपर आप बात करना चाहते हैं. वेरी करेक्ट. अभी जो CWM कोर्सेज है उसके सब्जेक्ट्स क्या होते हैं एग्जैक्टली नॉलेज पाथ में देखें? सो बेसिकली एज आई शेयर कि ये ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट क्रेडेंशियल्स है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की नॉलेज तो होती है, साथ में वेल्थ मैनेजमेंट की नॉलेज भी होती है, साथ में आपने जो वेल्थ ऑलरेडी क्रिएट की है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो वेल्थ प्रोटेक्शन रिलेटेड जो मॉड्यूल्स होती है, जैसे कि इंश्योरेंस प्लानिंग हो गई, मतलब रिस्क मैनेजमेंट वाली चीजें आ जाती है. साथ में आपको अगर यू आर बीइंग ए चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर, देयर इज अ मॉड्यूल ऑन टू कि आप अगर कॉर्पोरेट की जो वेल्थ होती है, मतलब ट्रेजरी जिसको बोलते हैं, तो वो ट्रेजरी को कैसे इफेक्टिवली मार्केट में इन्वेस्ट करवा के कॉर्पोरेट को भी एडिशनल रिटर्न जनरेट करवाए, तो उसके ऊपर भी मॉड्यूल है. और साथ में एस्टेट प्लानिंग के ऊपर भी इस कोर्स के अंदर फोकस है कि जहाँ पे आपने वेल्थ क्रिएट की है और यू वांटेड टू पास दैट वेल्थ इन अ टैक्स एफिशिएंट वे, और साथ में उस तरीके से आपको वो ट्रांसफर करनी है कि नेक्स्ट जनरेशन अच्छे से उसको अप्रिशिएट भी करे और साथ में वो उसको आगे ले जाए, नहीं कि ऐसा करे कि भाई रेडीमेड मिली हुई है तो उसको उसकी वैल्यू कम करे और उसको वेस्ट करे, वो नहीं हो. वो सारी चीजें चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर में आपको स्टूडेंट्स को सीखने को मिलेगी और वो एक अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को देती है. ब्रिजेश भाई, फाइनेंशियल प्लानिंग की जब बात हो तो जैसे CWM है वैसे ही एक और कोर्स है CFP. यस. तो स्टूडेंट्स में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ये दोनों कोर्स तो फाइनेंस मैनेजमेंट और प्लानिंग के ऊपर ही है, तो कहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंस पड़ता है इन दोनों के बीच? सो दैट्स अगेन अ गुड क्वेश्चन, और आप सही बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स को वहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन रहती है. तो अगर हम CFP और CWM को कंपेयर करें तो CFP इज प्राइमरली टारगेटेड टुवर्ड्स द एफ्लुएंट क्लास ऑफ इंडियन इन्वेस्टर. तो इट्स मोर टुवर्ड्स अ पर्सनल एंड फैमिली लेवल फाइनेंशियल प्लानिंग थिंग्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द CFP करिकुलम. तो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट वहाँ भी होती है, वो सारी चीजें वहाँ भी होती है, बट फोकस इज टुवर्ड्स एफ्लुएंट क्लास, मतलब एक फैमिली की फाइनेंशियल प्लानिंग आप अच्छे से करो, इंडिविजुअल और फैमिली फोकस वो ज्यादा है. वेरएज चार्टर्ड वेल्थ मैनेजमेंट में HNI के ऊपर फोकस ज्यादा है, जहाँ पे HNI को वेल्थ बनानी है, HNI की ऑलरेडी क्रिएटेड वेल्थ को प्रोटेक्ट करना है और उसको आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करना है टैक्स एफिशिएंट वे में. तो वो सारी चीजें CWM में आती है. अपार्ट फ्रॉम दैट कॉर्पोरेट, जैसे मैंने बताया कि ट्रेजरी मैनेजमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट थिंग, और देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड फैमिली ऑफिस. तो वो जो फैमिली ऑफिस वाला जो नॉलेज होता है वो भी आपको चार्टर्ड वेल्थ मैनेजमेंट में मिल जाएगा, जो नॉर्मली अल्ट्रा HNI के ऊपर वाले सेगमेंट में आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करता है. सो दीज आर द बेसिक ट्रीटमेंट. तो मैं नॉर्मली जब स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि वेदर शुड आई गो फॉर CFP और शुड आई गो फॉर CWM, तो मैं ये बोलता हूँ कि इफ यू आर टारगेटिंग रिटेल एफ्लुएंट क्लास ऑफ इन्वेस्टर इन इंडिया तो आपके लिए CFP अच्छा रहेगा. बट अब अगर आपको वो तो टारगेट करना है बट साथ में यू वांटेड टू टारगेट HNIs, तो आपको उसके लिए जो रिक्वायर्ड नॉलेज है वो स्किल्स लेके फिर जाके प्रैक्टिस करना है, देन CWM would be a better fit for you. So that is how one should do about whether to go for CFP or whether to go for CWM. इवन लास्ट 4-5 years का जो मैं डेवलपमेंट देख रहा हूँ गुजरात के अंदर, तो शायद 20 से ज्यादा फैमिली ऑफिस अहमदाबाद में एक्टिवेट है और जैसे गिफ्ट सिटी डेवलप हो रही है. मतलब आप देखिए तो वहाँ पे जो फंड्स आ रहे हैं वो अराउंड 500+ फंड्स ऑलरेडी गिफ्ट सिटी में आ चुके हैं. तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं पे वेल्थ मैनेजमेंट और फंड मैनेजमेंट बिकम्स बिगर एरियाज इन फाइनेंस सिटी ऑफ गिफ्ट. तो स्ट्रक्चर वाइज इन सारे कोर्सेज का डिमांड बढ़ने वाला है, दैट इज वेरी क्लियर. अब जब कोर्स करने की बात करते हैं तो क्वेश्चन सीधा आ जाता है कि आपने सब्जेक्ट्स के बारे में तो बता दिया, मगर
हम गुजराती लोग हैं तो पहले कॉस्ट को देखते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्ट कॉस्ट फॉर दैट कोर्सेज. So before coming to your answering your cost question, मैं थोड़ा सा इसका और भी, आप जैसे बोले गिफ्ट सिटी और फैमिली ऑफिसेस, तो देयर इज अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट गोइंग ऑन इन द इंडिया, जिसको हम फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक सेविंग बोलते हैं, राइट. तो टिपिकली अगर हम डेवलप नेशन में बात करें ना, तो अपने जीडीपी और म्यूचुअल फंड की एसेट का रेशियो ऑलमोस्ट 80-90% है. मतलब इंडिया का जितना जीडीपी है उसका 80-90% जितना अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड, मतलब इंडिया में नहीं है बट ग्लोबल स्टैंडर्ड ये है. Whereas India is still at 20%, okay, less than 20%. So there is a huge growth वहाँ पे, और उस गैप को कौन फिल करेगा? Because अगर मुझे, मेरे पास मेरी डोमेस्टिक सेविंग है, मैं कमा रहा हूँ और मैं उसमें सेव कर रहा हूँ, उसको मुझे अच्छे से इन्वेस्ट करके उसको ग्रो करवाना है, तो आई वुड नीड समवन टू हैंड होल्ड मी. तो वहाँ पे वेल्थ मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स इज गोइंग टू प्ले ग्रेटर रोल. तो एक तो ये ग्रोथ हो गया. दूसरा हो गया, अभी तक इंडिया में प्रैक्टिस ये थी कि फिजिकल एसेट्स में लोग इन्वेस्ट ज्यादा करते थे, रियल एस्टेट हो गया या गोल्ड हो गया. अभी वो चीजें शिफ्ट होना शुरू की है. लोगों को पता है कि लिक्विडिटी इज ऑल्सो ए क्राइटेरिया और बीटिंग इन्फ्लेशन इज ऑल्सो ए क्राइटेरिया. तो ये ड्राइव कर रहे हैं स्ट्रक्चरली, जो अपनी फिजिकल एसेट में जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको शिफ्ट कर रहे हैं लोग फाइनेंशियल एसेट्स में, और वहां पे वेल्थ मैनेजर्स आर गोइंग टू प्ले ग्रेटर रोल. सो दैट्स अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इंडिया इज विटनेसिंग. और अगर हम एसेट बेस की बात करें तो अभी और 100 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड एसेट अगले 3 से 5 साल में इंडिया में बिल्ड होने वाला है, अगर ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट है. वहां पे कोई मार्केटिंग एफर्ट वगैरह उसकी बात हम नहीं कर रहे, वो तो और बढ़ेगा उससे. तो ये रिलेवेंस है वेल्थ मैनेजमेंट की आगे जाके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप विजन लेकर देखें. अभी बात करें कि भाई कॉस्ट क्या रहेगी. सो टिपिकल कॉस्ट होती है, आपको यू हैव टू रजिस्टर विद द एएफएम, तो वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है जिसमें आपको मटेरियल रजिस्ट्रेशन और एग्जाम वगैरह आता है. एग्जाम अगर आप पहला अटेम्प्ट के बाद दूसरा रिक्वायर्ड होता है तो देयर इज एन सेपरेट एग्जामिनेशन फीस. और अगर आप कोचिंग लेने जाए तो कोचिंग इंस्टीट्यूट से हिसाब से फीस होती है. सो टिपिकली अगर आपको CWM करना है तो इट वुड कॉस्ट यू एनीवेयर अराउंड 1 to 1.5 लाख रुपीस, including institution fees and the coaching fees. But अगर if I believe कि अगर BBA के साथ में ये करेंगे तो that would be more cost effective, क्योंकि आपको BBA भी हो जाएगी और साथ में आपको CWM भी हो जाएगी. So that is how you need to basically LJ University ये साल पे नया कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. हम BBA के साथ हम CFP सर्टिफिकेशन, CWM सर्टिफिकेशन एंड जो फंड मैनेजमेंट के साथ कनेक्टेड NISM की जो मॉड्यूल्स हैं उनको हम मर्ज करके एक एम्प्लॉयमेंट इनहेंस कर सके, ऐसा कोर्स हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. तो वहाँ पे एक एडवांटेज यही रहता है कि ग्रेजुएशंस वेलिना फॉर्मेट में करने से बेटर है कि कुछ इंजीनियरिंग करके हम उसको इस तरफ ले जाए कि जहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी का एक अच्छा स्कोप मिले, और जो एग्जिट डिमांड है अभी सोसाइटीज में उसके साथ अपने आप को हम जोड़े. तो ये चीज हम नए तौर पे करके जा रहे हैं. अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जब चार्टर्ड बात चल रहा है तो इंडिया में तो आपको मालूम है कि हम चार्टर्ड वर्ड्स बोलते हैं तो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंसी दिमाग में आ जाता है. तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ यदि CWM को कंपेयर करें तो आप किस तरह से उसको रेट करें? So chartered accountancy is predominantly a finance course or accounting course rather towards the corporate side, जहाँ पे corporate accounting उसके compliances होते हैं. अगर accounting की या cost की जो efficiency की बात होती है, capital efficiency की बात हो, उसके ऊपर वो कोर्स फोकस करता है. और फोकस इज मोर टुवर्ड्स कंप्लायंस, कैसे कॉर्पोरेट जो लॉज, प्रिवेलिंग लॉज है उसको हम कंप्लाई कैसे करें. सो दैट इज एन एंटायरली डिफरेंट डोमेन. अगर CWM की बात करें तो जैसे हम बात कर चुके, इट इज मोर टुवर्ड्स वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग. तो दैट इज मोर टुवर्ड्स इंडिविजुअल्स एंड फैमिली साइड. Of course, there is a little bit of corporate involved because treasury management उसमें सिखाया जाता है कि surplus cash को कैसे आप मैनेज करके आप कैसे उसमें से करो. वो that part is overlapping between CA and in fact CA को treasury management इतना probably डेप्थ में नहीं जाता जितना CWM में जाता है. तो दोनों कोर्स के जो डोमेन है वो ही अलग है, राइट. तो जो अगर हम ग्रोथ की बात करें, अगर स्टूडेंट्स ये देखना चाहता है कि मुझे एक मैच्योर इंडस्ट्री में जहाँ पे स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट अच्छी है, अगर उस तरीके की कैरियर में जाना है तो CA कुड भी, अगर प्रैक्टिकल्स है. अगर आपको जाना है कि जहाँ पे इमर्जिंग इंडस्ट्री है और रैपिड ग्रो हो रही, रैपिडली एक्सपांडिंग इंडस्ट्री है, देन CWM कुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू, और वेल्थ मैनेजमेंट कुड बी अ बेटर डोमेन फॉर यू टू चूज. Okay, this CA is more or less connected with we can say
auditing and Yes. taxation domain part, and CWM is more connected with the finance and Financial investment planning. financial planning and investment. Yes, yes, very correct. One very clear question to you, ब्रिजेश भाई, कि जब कभी भी हम कोई कोर्स करते हैं ना, तो उसमें कुछ अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ बुरे एक्सपीरियंस होते हैं, मतलब वर्स एक्सपीरियंस होते हैं, तो आप क्या शेयर करेंगे? CWM आपने कैरियर के तौर पे सिलेक्ट किया, तो क्या आपके एक्सपीरियंस है? CWM की अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे अभी वो दिक्कत ये होती है कि लोग क्रेडेंशियल्स, अपनी क्रेडिटेबिलिटी बढ़ाते हैं, बट लोग क्रेडेंशियल के हिसाब से एडवाइजर को सिलेक्ट नहीं करते हैं। वो ये नहीं देख पाते हैं क्योंकि उनको उसके बारे में ज्यादा पता ही नहीं है। तो अगर हम इस कैरियर में बात करें तो क्रेडेंशियल अपने आप की कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आपके प्रोफेशन डोमेन में अपनी क्रेडिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए डेफिनेटली क्रेडेंशियल हेल्प करेगा। बट अगर आप रिटेल इन्वेस्टर मतलब आपके क्लाइंट के पास जाओगे तो वहां पे वो जो इम्पैक्ट जनरेट करना चाहिए, वो अपनी यहाँ की अभी जो सोच है, वो सोच के हिसाब से वहां पे वो इम्पैक्ट जनरेट नहीं कर पाए। दैट इज द पेन एरिया विच आई फील कि वहां पे थोड़ा काम सबको मिलकर करना चाहिए कि ये क्रेडेंशियल है तो वो क्रेडेंशियल की वो रिकग्निशन है, और ये क्रेडेंशियल क्यों आपको सेफ हैंड में डालता है, क्योंकि वो बंदा पढ़ा हुआ है, सारी चीजें नॉट ओनली पढ़ा हुआ है, उसने एक इंटरनेशनल लेवल की एग्जामिनेशन क्लियर की है, उसके बाद उसके ऊपर वो क्रेडेंशियल लगता है। तो उसकी जो रिकग्निशन मिलनी चाहिए इंडस्ट्री में फ्रॉम दी टारगेट ऑडियंस, दैट इज वेयर दी लॉट ऑफ नीड्स टू बी वर्क अपॉन। अभी 12th का एग्जामिनेशन रिसेंटली ब्रिजेश पे कंप्लीट हुआ है, तो आफ्टर 12th जो क्वालिफिकेशन हम एड्रेस करते हैं उसमें एक CWM भी एक चॉइस में रहता है, तो CWM का बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? वो ग्रेजुएशन डिमांड करता है कि आफ्टर 12th भी आप कर सकते हैं? नहीं, यू कैन स्टार्ट विद 12th, ओके, बट आपको क्रेडेंशियल जब आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी उसके बाद दे विल बी अवॉर्डेड। ओके, तो एलिजिबिलिटी इज ग्रेजुएशन टू अवेल द चार्टर, but you can start studying along with your 12th standard. ओके, मतलब एग्जामिनेशन यू कैन कंक्लूड साइमल्टेनियस विद योर ग्रेजुएशंस, वेरी करेक्ट। अभी थोड़ा हमें AFM इंस्टीट्यूट के बारे में भी बताइए, क्योंकि और किस तरह से वो अपने को सपोर्ट करते हैं प्लेसमेंट और ट्रेनिंग के। ओके, इट्स एन अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहाँ पे इंडिया में उसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और ये AFM वेल्थ मैनेजमेंट रिलेटेड, मतलब CWM इज वन ऑफ द रेप्यूटेड क्रेडेंशियल जो वो देते हैं। दूसरा उसके साथ आप चार्टर्ड ट्रस्ट एंड एस्टेट प्लानिंग करके उसका CTP करके क्रेडेंशियल अवेलेबल है, और साथ में वो बहुत सारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं कि जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो गई और वो अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको नॉलेज देना चाहते हैं, उनको उनकी नॉलेज शार्पन करना चाहते हैं, तो दे आर रनिंग चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर क्रेडेंशियल फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि उसको गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग के स्किल इम्पार्ट करे। तो ये सारी एक्टिविटीज AFM करता है। साथ में उसकी एक कम्युनिटी भी है कि जहाँ पे वो कम्युनिटी गिवर्स के तौर पे फाइनेंशियल लिटरेसी सेशंस के लिए भी वो इनिशिएटिव लेता है। तो ये सारी AFM की एक्टिविटी रहती है। और अगर प्लेसमेंट कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया में CWM इज अ रिकॉग्नाइज्ड क्रेडेंशियल अगर आपको बैंकिंग में आपको एडवांस लेवल की पोस्टिंग पे जाना है। तो अगर आप बैंक में जाएंगे कहीं भी तो वो आपको CWM सीधा एडवांस लेवल की पोस्टिंग पे आपको एलिजिबल बनाएगा, जहाँ पे डायरेक्ट एंट्री होती है। हाँ, आज आप देखते हैं कि बैंकिंग के अंदर 3 चीज अब जुड़ गई है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है एंड इन्वेस्टमेंट्स है। तो मतलब आप कोई भी बैंकिंग आप देखिए, प्राइवेट देखिए कि PSU बैंक देखिए, तो उसके अंदर ये तीनों फैक्टर्स इंक्लूड है, तो वहां पे शायद सर्टिफाइड वेल्थ मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन सकता है। वेरी करेक्ट। अब ब्रिजेश भाई एक और क्वेश्चन है, जब कभी भी हम पॉडकास्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज रहती है कि आज के यूथ के लिए कौन से ऐसे स्किल सेट इंपॉर्टेंट है जो उनको आगे अपनी कॉर्पोरेट कैरियर्स में हेल्पफुल बनता है? सो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट जो मैं देखता हूँ कि उनकी सक्सेस के लिए वेरी की है, बट उसको वो करना नहीं चाहते हैं, अपना माइंडसेट उनको चेंज करना पड़ेगा। सेलिंग इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। वाओ, करेक्ट। सो दे नीड टू लर्न एटलीस्ट रूडिमेंट्री सेलिंग स्किल। अगर अपने आप को जॉब लेनी है ना, तो जॉब में जब आप जा रहे हो तो उस टाइम पे भी आप अपने आप को सेल ही कर रहे हो। जब आप जॉब के लिए जा रहे हो, मिनिमम जो सेलिंग की बात करें, तो सेलिंग से अगर आप परहेज करोगे लाइफ में, सेलिंग इज नॉट नेसेसरी कि आपको जाके प्रोडक्ट को जाके सेल करना है, बट आपको अपने आप को इतनी स्किल्स तो आनी चाहिए कि आप अपनी जो थॉट है या तो अपनी जो कैरियर है उसमें आप अपने आप को सेल कर पाओ, अपने आइडियाज को सेल कर पाओ। और ऑफ कोर्स सेलिंग इज एवरीवेयर। आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ, जैसे कि मैं एडवाइजर हूँ, बट आई हैव टू सेल माई सेल्फ एज एन एडवाइजर, तभी लोग जाके बाय करेंगे।
राइट. सो वो सेलिंग स्किल सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर उसको इग्नोर किया जा रहा है. दैट इज व्हाई आई एम हाईलाइटिंग. भागते लोग, उससे भागना नहीं चाहिए, उसको अपनी नेचुरल वे में लाइफ में इंकॉर्पोरेट करना चाहिए, बिकॉज उसके बगैर सक्सेस इज नॉट दैट. अदर्स है कम्युनिकेशन स्किल वगैरह, बट उसके बारे में बहुत बातें होती है, तो आई वुड नॉट गो इनटू दैट डिटेल्स, क्योंकि वो सब जानते ही है. बट सेलिंग इज वेयर समवन नीड्स टू focus on. Very true, Brijesh bhai. Basically, when we talk about the success part, so three skill set is very important. That is, one is educator, second is entertainer, or third is a storyteller. And when we take it all these three together, I think finally it is conclude on the selling skills only. So students, it is very important that we need to create selling skill, and हमें परहेज नहीं रखना है अपने selling activities से. So Brijesh bhai, thank you very much for giving the time for these sessions, and I think this session would be very helpful for the students who want to pursue the qualification of CWM. So on behalf of LJ University and Radio LJ, and we can say our new initiative of LJ University, that is Career Box, I am very much thankful for sparing the time for us. Thank you very much. Thank you for having me on the podcast. All the best to the new initiative which you have undertaken, educating through using the podcast, and at the same time integrated BBA program wherein you are integrating BBA with the CFP and CWM. My best wishes and also best wishes to the students जो ये podcast देखेंगे, क्योंकि उनकी कैरियर में ये सारे जो आज हम कर रहे हैं, आगे भी आने वाले, वो सारे आपको हेल्प करेंगे.